Yes, very good morning, students. Today we'll be dealing with the term gift under Hindu law. Students, this particular term gift under Hindu law is had wider implications. The term Hindu law, wherein we will be discussing the term gift, have a special reference. Now let us see what do we mean by the term gift and the meaning and the definition of the term gift in general. The gift consists in relinquishment without consideration of one's own right or a property that we call the same to be, and the creation of a right of another, and the creation of another man's right is completed on that other's acceptance of the gift but not otherwise. What does this mean? गिफ्ट कंसिस्ट इन रिलिंक्विशमेंट. गिफ्ट मतलब क्या होता है? हम रिलिंक्विश कर देते हैं अपना खुद का राइट ओवर द प्रॉपर्टी, और साथ ही हम क्या करते हैं? क्रिएट कर देते हैं राइट ऑफ अनदर पर्सन. उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी पे हम हमारा राइट एंड करके, रिलिंक्विश करके, छोड़ के दूसरे का राइट क्रिएट कर देते हैं. और जिस किसी का भी राइट क्रिएट करते हैं उसका राइट कब कंप्लीट माना जाता है? जब दूसरा पर्सन उस गिफ्ट को एक्सेप्ट कर लेता है. So relinquishment of one's own right and the acceptance of that particular gift by the other is called is make the gift complete. This makes the gift complete, and it is called as a gift in the general sense. Now let us see what do we mean by the term gift and what property may be disposed of by way of gift, because we have seen now what do we mean by the term gift. Now we'll be discussing what property may be disposed of by way of gift. Students, there are various properties which may be disposed of by way of gift. Firstly, it inclusive of separate or a self-acquired property, the coparcenary interest. Father may dispose of ancestral or self-acquired property. Female may dispose of her stridhan. The widow can dispose of her property which is inherited by her husband. The widow can dispose of the property which is inherited by her husband. This is inclusive the property which has been actually inherited by a woman under Malika law, and the last one is the owner of an impartiable estate. Now let us see one by one what this kind of a property which may be disposed of by way of a gift. Firstly is the separate or the self-acquired property. Hindu, whether governed by Mitakshara or by Dayabhaga school, may dispose of by gift his separate or self-acquired property, subject in certain cases to the claims for maintenance of those whom he is legally bound to maintain. जो कोई भी हिंदू है, भले ही फिर वो मिताक्षरा स्कूल को बिलोंग करने वाला हो, दयाभागा स्कूल को बिलोंग करने वाला हो, वो क्या कर सकता है? अपनी प्रॉपर्टी को गिफ्ट के जरिए डिस्पोज ऑफ कर सकता है. कौन सी प्रॉपर्टी को? उसकी सेपरेट या फिर सेल्फ अक्वायर्ड प्रॉपर्टी को, प्रोवाइडेड उसने उन लोगों के मेंटेनेंस का प्रोविजन करना है जिनको वो लीगली बाउंड है मेंटेन करने के लिए. अगर वो उन लोगों को मेंटेन करने का प्रोविजन कर देता है जिनको वो लीगली बाउंड है मेंटेन करने के लिए, तो वॉट एवर द प्रॉपर्टी हिज सेपरेट एंड सेल्फ अक्वायर्ड प्रॉपर्टी इज, ही कैन ट्रांसफर दैट पर्टिकुलर प्रॉपर्टी बाय वे ऑफ गिफ्ट. It hardly make any difference if he belong to a Mitakshara school or he belong to a Dayabhaga school. That is to say, in both these schools, there is a provision wherein a person can, who is a Hindu, can transfer his property by way of gift, his property, whether it may be a separate property or a self-acquired property. Next is the coparcenary interest. Now, the person is having a coparcenary interest over the particular property. Whether the particular property over which the person is having a coparcenary interest would be in a position to transfer that particular property by way of gift, the question comes in my mind. A copartner under the Abhaga law may dispose of his coparcenary interest by gift, provided subject to the claim of those who are entitled to be maintained by him. Definitely, he is free to dispose of his property, which over which he is having a coparcenary interest, provided he have to satisfy the claim of those who are entitled to maintain by him. A copartner under Mitakshara law, however, has no such power unless he is a sole surviving copartner. But there is a difference which we found in the law provision relating to this particular concept, for the reason that the person who are governed by the Bhaga law is having a right to dispose of his coparcenary interest even in the form of a gift, provided he is
maintaining for though he is providing a maintenance those who are entitled to be maintained by him. But so far as the Mitakshara law is concerned, the Hindu who is governed by Mitakshara law have no such powers, provided if he is a sole surviving Upasana, there is no issue, there is no member dependent upon him, then definitely he is free to transfer by way of gift his Upasanary interest in the property. Now let us see whether father may dispose of his ancestral or self-acquired property. Yes, a father under the Bhaga law may by gift dispose of the whole of his property, whether ancestral or self-acquired, सब्जेक्ट टू द क्लेम्स कि जो भी लोग मेंटेन्ड होने के लिए एंटाइटलमेंट रखते हैं उनका एंटाइटलमेंट होना चाहिए. ओनली उनके मेंटेनेंस के बाद में ही फादर वुड बी अंडर दया भागा लॉ डिस्पोज ऑफ द प्रॉपर्टी, द होल ऑफ हिज प्रॉपर्टी, भले ही फिर वो उसकी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी क्यों ना हो, इंक्लूसिव ऑफ हिज सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी. Now, if we take into consideration the other point, then whether the female may dispose of a stridhan. So yes, the female may dispose of her stridhan by way of gift, or even may she dispose of her property by way of will. But in certain cases, she has to obtain the consent of the husband. Now, next is widow can dispose of a property inherited by husband. Then in that case, a widow may in certain cases by way of gift dispose of a small portion of the property which she has inherited from her husband, but she cannot do so by way of will. विडो जो है वो थोड़ी बहुत जो स्मॉल पोर्शन ऑफ द प्रॉपर्टी है जो भी उसने अपने हस्बैंड से इनहेरिट किया है उसको वो डिस्पोज ऑफ कर सकती है बाय वे ऑफ विल, बाय वे उसको बाय वे ऑफ गिफ्ट, बट वो उसको डिस्पोज ऑफ नहीं कर सकती बाय वे ऑफ विल. तो कहने का मतलब है यहाँ पे हम बात करेंगे कि यहाँ पे जो इमूवेबल प्रॉपर्टी है जिसमें ऑलरेडी इनहेरिटेंस के नाम पे लीगल हेयर्स अवेलेबल हैं हस्बैंड के, तो विडो जो है जो भी प्रॉपर्टी उसने अपने हस्बैंड से इनहेरिट की है वो विदाउट द कंसेंट ऑफ द लीगल हेयर उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को जो कि उसने अपने हस्बैंड से इनहेरिट किया है उसको बाय वे ऑफ गिफ्ट डिस्पोज ऑफ नहीं कर सकती है. दूसरा प्रोविजन कहता है वेदर अ विडो कैन डिस्पोज ऑफ द प्रॉपर्टी इनहेरिटेड बाय हस्बैंड, then definitely a widow who is governed by Mayukha law may alienate by gift the movable property which has been inherited by her from a husband, though she cannot dispose of it by way of will. वो क्या कर सकती है, मूवेबल प्रॉपर्टी जो है जो भी उसने अपने हस्बैंड के द्वारा इनहेरिट की है उसको तो वो एलिनेट कर सकती है, बट वो विल बना के उसको किसी और को नहीं दे सकती है, वो सिर्फ और सिर्फ गिफ्ट के फॉर्म में ही दे सकती है मयूखा लॉ के अंतर्गत. Now let us see the last one, that is the owner of an impartiable estate. तो क्या ओनर ऑफ द इम्पार्टिएबल स्टेट, इम्पार्टिएबल स्टेट मतलब क्या, जिसके पार्ट नहीं किए जा सकते, जिसका डिवीजन नहीं किया जा सकता, ऐसी कोई प्रॉपर्टी है, देन इन दैट केस वेदर दैट पर्टिकुलर ओनर ऑफ एन इम्पार्टिएबल स्टेट कैन डिस्पोज ऑफ दैट पर्टिकुलर part or the right over that particular property by way of gift to some another person. The owner of an impartible state may dispose of it by way of gift or the will unless there is a special custom. Yes, impartible state जो है वो कर सकता है अपना बेसिकली पार्ट जो है वो डिस्पोज ऑफ कर सकता है बाय वे ऑफ गिफ्ट भी बाय वे ऑफ विल भी, लेकिन यदि कोई स्पेशल कस्टम उसको रोकता होगा इस तरीके के एलिमिनेशन करने से, देन इन दैट केस या फिर पर्टिकुलर टेन्योर तक वो पर्टिकुलर प्रॉपर्टी जो है वो बांध के रखी गई होगी, देन इन दैट केस वो जब तक टेन्योर खत्म नहीं होता वो पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को एलिनेट नहीं किया जा सकता जब तक वो स्पेशल कस्टम वहाँ पे है और जो कि प्रोहिबिट कर रहा है एलिमिनेशन इस तरीके से बाय वे ऑफ गिफ्ट, देन इन दैट केस ओनर जो है इम्पार्टिएबल स्टेट का वो उसको डिस्पोज ऑफ नहीं कर सकता है बाय वे ऑफ गिफ्ट और बाय वे ऑफ विल. नेक्स्ट इज द डिलीवरी ऑफ पोजीशन. अब हमने देख लिया बेसिकली कि कौन सी प्रॉपर्टी को डिस्पोज ऑफ किया जा सकता है, कौन सी प्रॉपर्टी को डिस्पोज ऑफ नहीं किया जा सकता है. नाउ स्टूडेंट लेट अस अंडरस्टैंड कि हमने इसके पहले पढ़ा था कि सामने वाले पर्सन यानी डोनी जिसको हम बेसिकली प्रॉपर्टी गिफ्ट करना चाहते हैं उसे हम डोनी कहते हैं, जो प्रॉपर्टी गिफ्ट कर रहा है उसे हम डोनर कहते हैं. तो ये जो डोनी है इसने एक्सेप्टेंस भी करना चाहिए ना, अगर उसने एक्सेप्टेंस नहीं किया तो कंप्लीट नहीं होगा अपने आप में गिफ्ट, और एक्सेप्टेंस करने के लिए क्या होना जरूरी है, हमारी तरफ से प्रॉपर्टी उसको डिलीवर भी की जानी जरूरी है, यानी दैट इज टू से डिलीवरी ऑफ द पोजीशन होना जरूरी है. अ गिफ्ट अंडर प्योर हिंदू लॉ नीड नॉट टू बी इन राइटिंग. पहले इस समय में हम ऐसा बोलते थे कि राइटिंग में जरूरी नहीं है गिफ्ट देना,
But a gift under that law is not valid unless it is accompanied by delivery of the possession. लेकिन राइटिंग में देना जरूरी नहीं है, बात समझ में आती है, बट पोजेशन तो देना जरूरी है ना। तो पोजेशन जो है वो जरूरी है देना, भले ही आपने राइटिंग में नहीं दिया हो, क्योंकि जब तक आप पोजेशन नहीं देंगे तब तक गिफ्ट जो है अपने आप में कंप्लीट नहीं माना जाएगा। तो अंडर अ हिंदू लॉ need not be, the gift need not be made in writing, but a gift under that law is not valid unless it is accompanied by the delivery of possession of the subject, the gift from the donor to the donee. Next is mere legislation of need of a gift is not equivalent to delivery of possession. सिर्फ लॉ बना देना अपने आप में इसका ये मतलब नहीं है कि डिलीवरी ऑफ पोजेशन हो गया, लॉ को इम्प्लीमेंट करना भी जरूरी है। तो mere legislation of need of a gift is not equivalent to delivery of the possession. Next, it is not therefore sufficient to pass the title of the property from the donor to the donee. ये अपने आप में सिर्फ सफिशिएंट नहीं है कि आप टाइटल पास कर दो, सिर्फ टाइटल पास कर देने से नहीं होता। अगर टाइटल पास कर दिया और फिर भी प्रॉपर्टी अपने पास ही लेके बैठे हैं, सामने वाला जिसके नाम पे आपने टाइटल दिया है वो बेचारा उसको एंजॉय नहीं कर रहा, अगर उसको वो एंजॉय करना है तो उसको कोर्ट में जाके मांगना पड़ेगा। So this is not to be done. So it is not therefore sufficient simply to pass a title over the particular property to a person. It is again important कि आपने क्या करना है, delivery of possession भी देना है। But where from the nature of the case physical possession cannot be delivered. लेकिन यदि मान लीजिए कि ऐसी सिचुएशन है कि हम फिजिकल पोजेशन नहीं दे सकते हैं, it is enough to validate a gift if the donor has done all that he could complete the gift. तो उतने में वो सफिशिएंट होगा कि डोनर ने वो सारी बातें की हैं जो कि अपने आप में जरूरी हैं गिफ्ट को कंप्लीट करने के लिए, सो एज टू एंटाइटल द डोनी टू ऑब्टेन द पोजीशन, जिसके तहत डोनी जो है वो पोजीशन कभी भी क्लेम कर सकता है। अब इसका एग्जांपल जैसे ले लीजिए, सपोज इफ फॉर एग्जांपल आई हैव गिफ्टेड अ प्लॉट टू माय माइनर सन, आई हैव गिफ्टेड अ प्लॉट टू माय माइनर सन। अब मेरा माइनर सन जो है उसको मैं ये फिजिकल पोजीशन नहीं दे सकती हूँ। क्यों नहीं दे सकती हूँ? क्योंकि ही इज स्मॉल, he can make some wrong decisions in his life till the time he attains the majority, till the time he attains the majority, then in that case मैं क्या डाल दूंगी उसमें कि भाई ये 18 साल तक जब तक नहीं होता है तब तक he won't be in a position to make any kind of decision with respect to that particular property, but as the very moment he completes his 18 he will be in a position to even take a physical possession of that particular land. So but where there are nature of some physical possession could not be delivered, यहाँ पे हम physical possession नहीं दे रहे हैं उसको, बट हम वो सारी चीजें कर ले रहे हैं, जैसे हमने उसके नाम पे खरीदा, उसके नाम पे लगा दिया, उसके नाम पे रजिस्ट्री लगा दी, जिसमें कि वो आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 18 ईयर्स क्या कर सकता है, उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी का पोजीशन भी ले सकता है। If this has been done, then in that case that particular transfer of the property by way of gift would be termed to be a valid gift. Next is, if we talk about a gift to an unborn person, then in that case what could be the provision? So under pure Hindu law a gift cannot be made in a favor of a person जो कि existence में ही नहीं है at the date of gift, है ना, future gift हम नहीं कर सकते, it is void, right? But ये जो है basically rule apply नहीं होगा following तरीके के इसको। कहने का मतलब है हिंदू ट्रांसफर एंड बिक्विस्ट एक्ट के अंतर्गत हम प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर सकते हैं ऐसे किसी पर्सन को जो कि एग्जिस्टेंस में भी नहीं है एट द डेट ऑफ गिफ्ट। दूसरा, हमने ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का भी उस दिन हमने एग्जाम्पल लिया था जिसमें कि हम बेसिकली अनबॉर्न पर्सन जो कि अपने आप में मदर वूम में भी कंसीव नहीं हुआ है उसको भी हम प्रॉपर्टी डिस्पोज ऑफ कर रहे थे। नेक्स्ट इज द हिंदू डिस्पोजिशन ऑफ द प्रॉपर्टी एक्ट 1961, द हिंदू ट्रांसफर एंड बिक्वेस्ट एक्ट 1921। यहाँ सारी चीज़ों में भी देखा जाए तो ये रूल जो है ये अप्लाई नहीं होगा। दिस रूल स्टिल अप्लाइज टू द केसेस टू द प्रोविजन ऑफ ऑल द 3 एक्ट्स मेंशन, नेमली the Hindu Transfer and Bequest Act 1940, the Hindu Disposition of the Property Act 1961, Hindu Transfers and Bequest Act 1921 do not apply. फिर a gift of property is not invalid because the donor reserves the usufruct of the property to himself for a life. सपोज फॉर एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं प्रॉपर्टी आपको ट्रांसफर कर रही हूँ, यूसुफ्रुक्ट का मतलब क्या होता है, फ्रूट्स यूज करने का राइट, फ्रूट्स यूज करने का राइट, यानी कि प्रॉपर्टी से बेनिफिट लेने का राइट। अब गिफ्ट ऑफ अ प्रॉपर्टी इज नॉट इनवैलिड, अगर हम ऐसी कोई प्रॉपर्टी गिफ्ट में देते हैं जिसमें कि डोनर अपने पास में रिजर्व रखता है राइट उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी से अराइज होने वाले फ्रूट्स को एंजॉय करने का,
कब तक? अपने खुद की लाइफ रहने तक, यानी जब तक वो जिंदा है तब तक उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी में से जो कुछ भी फ्रूट्स है अराइज होंगे वो अपने पास रखेगा। इस कंडीशन के साथ में भी अगर वो प्रॉपर्टी ट्रांसफर करता है तो उसे हम वैलिड ट्रांसफर ही बोलेंगे। Where property is given subject to condition absolutely restraining a donee from alienating it, or that it is given to two or more of the person subject to a condition restraining them from partitioning it, the condition is void but a gift itself remains good। लेकिन यदि मान लीजिए प्रॉपर्टी जो है वो इस कंडीशन के साथ दी गई है डोनी को कि वो कभी उसको एलिनिएट नहीं करेगा, कभी उसको ट्रांसफर नहीं करेगा, या फिर हमने प्रॉपर्टी जो है बाय वे ऑफ गिफ्ट दो या दो से ज्यादा लोगों को दी है ये बोलते हुए कि भाई तुम इसका कभी पार्टीशन नहीं करना, इसका कभी पार्टीशन नहीं हो सकेगा, देन इन दैट केस इस तरीके से जो रिस्ट्रिक्शन हम लेके आ रहे हैं वो कैसा माना जाएगा? वो वॉइड माना जाएगा। बट जो गिफ्ट है वो कैसा रहेगा? वैलिड माना जाएगा। Next is a gift once completed is binding upon the donor and it cannot be revoked by him unless it was obtained by fraud or undue influence। गिफ्ट जब भी हम एक बार करते हैं यानी डोनर जब कभी भी एक बार गिफ्ट करेगा वो बाइंडिंग रहेगा डोनी के ऊपर और एक बार किया हुआ गिफ्ट रिवोक बैक नहीं हो सकेगा जब तक कि ये सामने नहीं आ जाता कि गिफ्ट जो है वो हासिल किया है डोनी ने फ्रॉड के जरिए या फिर अंडर इन्फ्लुएंस के जरिए। कहने का मतलब है डोनर जो है उसने प्रॉपर्टी बाय वे ऑफ गिफ्ट दे दी लेकिन पीछे जो है डोनी का क्या था? फ्रॉड था या अंडर इन्फ्लुएंस था उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को हासिल करने के लिए। देन इन दैट केस डेफिनेटली जो है डोनर क्या कर सकता है? अपनी प्रॉपर्टी को रिवोक बैक कर सकता है। स्टूडेंट्स, हियर वी हैव कंप्लीटेड द टॉपिक ऑफ गिफ्ट अंडर हिंदू लॉ। I hope you understood the concept